Hello students, welcome to lecture number 11 of Unit 11, the P block elements, standard 11. As we know that presently in this unit of the P block elements, we studied about the two different groups, group 13 and group 14. Group 13 means boron family that we have to completed in our last lecture. And from last lectures we start our journey with block number 14 means it's a carbon family. And in these portions in last lectures we completed physical properties and we start the chemical properties in such a way that first we have to study about the oxidation states and trends in chemical reactivity. Fine. So now let us start with some more chemical reactivity of this family with a reactivity towards oxygen. So let us start with the reactivity towards oxygen. So we know that all the elements of group 14 when heated in oxygen, right, they form oxides, and there are mainly two types of oxides. First, whenever this type of the means group 14, right, when we heated with oxygen, so two types of oxides are formed. They are mainly, one is monoxide, means MO, the formula is like that, MO, and dioxide means MO2, it is dioxide. Okay, SiO means silicon monoxide exists only at high temperature where it is thought to be formed by reduction of SiO2. So this is the basic concept about the reactivity towards oxygen. So once again, all the members when heated in oxygen form oxides. There are mainly two types of oxides. Monoxide means MO and dioxide means MO2. While in the case of this SiO, right, silicon monoxide only exists, this oxide only exists at high temperature. जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं SiO2, when SiO2 reacts with silicon, so it's converted into their silicon monoxide. Okay, because it is formed by reductions of SiO2. Okay, so reactivity towards oxygen. So there are some properties. So one property is called as an acid-base character. It's called as an acid-base character. So what is in the acid-base character? The oxides in higher oxidation states of the elements are generally more acidic. यानी जो higher oxidation state होते हैं, right? तो which is more acidic? वो तो सभी में होता है, acidic ही होते हैं higher oxidation state as compared to the lower oxidation state. जैसे जैसे हम ग्रुप में, ये जो ग्रुप 14 है, जैसे वो ग्रुप में हम जैसे मूव डाउन होंगे, राइट, मूव डाउन द ग्रुप, द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो वो जो कैरेक्टर है वो डिक्रीजेस हो रहा है, राइट. सो एमोंग डाइऑक्साइड, जैसे हम समझ रहे हैं कि भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या होता है, एसिडिक है. while in the case of this germanium dioxide, right, so which is less acidic than SiO2, and this SnO2 and PbO2, SnO2 and PbO2, right, are amphoteric in nature. फिर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक है, SiO2 इज लेस एसिडिक, GeO2 इज लेसर एसिडिक,
and SnO2 and PbO2 are they are amphoteric in nature. तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पे भी पॉइंट इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि जो मोनोक्साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोनोक्साइड के बारे में, जैसे मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड है, तो कार्बन मोनोक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, while GeO means germanium monoxide is distinctly acidic. वो थोड़ा डिस्टिंक्टली एसिडिक है। और तीसरा जो है SnO and PbO, दे आर एम्फोटेरिक, वो एम्फोटेरिक है नेचर में। तो इस तरह से भी हम उसके मोनोक्साइड के बारे में भी हम यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा मोनोक्साइड के बारे में मिस यानी ऑक्सीजन के साथ उसका जो रिएक्टिविटी का जो पोर्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। एकदम सिंपल है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट? They do not decompose water at all. But tin decomposes steam to form tin oxide, means SnO2 and dihydrogen gas. For example, if tin is react with a steam, so it's converted into SnO2 and H2 is released. Okay. So carbon, silicon, germanium do not decompose water at all, but tin decomposes steam to form SnO2 and H2. Lead is unaffected by water, probably because of the protective oxide film formation. Lead, Pb, is unaffected by water, probably because of the protective oxide film formation. तो इतना ही यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी हमारा जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन के बारे में हम बात करेंगे। The elements of group 14 forms halides of the formula MX4 and MX2. Except carbon, all other elements reacts directly with halogen, right? जैसे दिस एलिमेंट्स में हम एक्सेप्ट कार्बन के बारे में बात करेंगे तो बाकी की जो भी हमारे पास मेंबर्स है वो डायरेक्टली हेलोजन के साथ प्रोसेस कर सकेंगे। उसमें जो मैं फर्स्ट आपके साथ दिखाना चाहता हूं वो है MX4, यानी हम उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेलाइड भी बोलेंगे। So all the elements of group 14 form tetrahalides of MX4. All the elements of group 14 form tetrahalides of the formula MX4. Most of the tetrahalides are covalent in nature. Most of the
क्योंकि हमने आगे ही पढ़ा था कि जो टेट्रा में चला जाएगा उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट कम होएगा तो आयोनिक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सो मोस्ट ऑफ द टेट्रा हेलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। जैसे हम बात करेंगे द सेंट्रल एटम इन दिस हेलाइड्स अंडरगोस sp3, यानी उसमें क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है एंड द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। sp3 की वजह से उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। जैसे एक्सेप्शंस इसमें क्या होगा कि जैसे मेरे पास SnF4 है और जैसे PbF4 है, राइट, तो ये दोनों है उसमें एक्सेप्शंस है, दे आर आयोनिक इन नेचर, दे आर आयोनिक इन नेचर। ये दोनों एक्सेप्शन में यहाँ पे चल रहे हैं। तीसरा मैं यहाँ पे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। तो थर्मल स्टेबिलिटी एंड आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हेलाइड्स, जैसे मैं उसका एटॉमिक नंबर इस ग्रुप में जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, राइट, द एटॉमिक नंबर और द साइज ऑफ द हेलोजन एटम, यानी जो हेलोजन का एटॉमिक नंबर या उसका जो साइज है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, राइट, सो थर्मल स्टेबिलिटी एंड आयोनिक कैरेक्टर of these halides decreases। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास PbCl4 है, तो PbCl4 क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन जो PbBr4 होगा, क्योंकि उसमें साइज ब्रोमीन की बढ़ रही है, तो वो अनस्टेबल हो पा रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। और जो PbI4 की बात हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखता हूं लेकिन विच इज अननोन, राइट, तो क्या होगा इसमें, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbI4 क्यों हो रहा है? द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbI4 इज प्रोबेबली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Pb+4। देखिए यहां पे मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, तो नॉन एग्जिस्टेंस of PbI4 is probably due to the strong oxidizing power of Pb+4 and strong reducing power of I-, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट नेचर में है, राइट। इस तरह से हम देखेंगे कि जो अनस्टेबिलिटी थी PbBr4 की, मे बी उसका भी यही रीजन होगा ना, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ Pb+4 एंड वीक रिड्यूसिंग पावर ऑफ Bri, राइट। तो इसकी वजह से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbI4 का एक और रीजन इस तरह से भी हो सकता है कि जो Pb और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड इनिशियली फॉर्म होगा, जो बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट, इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शंस डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर। जो बॉन्ड में क्या होगा कि जो वो 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से, राइट, तो वो जो 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, विच इज एक्साइट वन ऑफ देम टू 6p ऑर्बिटल में चला जाए, तो उसमें क्या होगा कि वो जो एक्साइट होके उसको क्या कहां चला जाना चाहिए, 6p में चला जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो वो लेड के आसपास होगा, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक रीजन इसके लिए यहाँ पे जिम्मेदार है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको MX4 के बारे में दिखाना चाहता हूँ
वो है कि जो CCl4 के बारे में बात हो रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात हो रही है. So this carbon tetrachloride is not hydrolyzed by water, यानी वो पानी से हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है. समझ में आ रहा है, राइट? सो however the tetrachlorides of all, बाकी के जो भी हो गए, CCl4 ही एक ऐसा है कि वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है. however the tetrachlorides of the, लेकिन all the रिमेनिंग मेरे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके जो टेट्राक्लोराइड्स हैं, राइट, दे आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड. चलो आपको जैसे मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, SiCl4 है, राइट, तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, विच इज कन्वर्टेड इनटू SiOH4 एंड 4HCl. उसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूं टीन का जो है मेरे पास, सेम वे, राइट, यहाँ पे 2H2O, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू SnO2 एंड 4HCl. अच्छा, अभी यहाँ पे कई बच्चे को ये भी क्वेश्चन होता है कि सर जी ये CCl4 है, क्यों हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है? तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स. उसके पास d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, हेंस कैन नॉट एक्सपांड, यानी वो 4 से, यानी क्या बोल रहे हैं मैं, विच कैन हेंस कैन नॉट एक्सपांड. its coordinate number beyond 4, यानी 4 से ज्यादा वो अपना जो है कोऑर्डिनेट नंबर ही नहीं आगे ले जाएगा. लेकिन हमें मालूम है कि सिलिकॉन कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट means beyond 4 due to availability of a vacant d orbital होने की वजह से वो आगे जा सकता है. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको समझा रहा हूं? फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं. मैंने आपको क्या बोला, CCl4 is not hydrolyzed by water because carbon does not have d orbitals and hence it cannot expand its coordination number beyond 4. But silicon can expand its octet, means coordination number, beyond 4 due to the availability of the energetically suitable vacant d orbitals in the silicon atoms. देखिए अभी क्या होगा, जैसे मेरे पास SiCl4 होता है, तो SiCl4 में जैसे पानी का अटैक होता है तो पानी अपना लॉन पेयर सिलिकॉन को देगा, तो सिलिकॉन होगा तो उसके पास उसका जो लॉन पेयर के लिए एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास कुछ होना तो चाहिए, यानी वो अपना लॉन पेयर के लिए उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने की वजह से वो ले पा रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे वो प्रोसेस करके वो सिलिसिक एसिड में चला जाएगा. तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है. दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टेट्राहेलाइड्स जो भी होते हैं ऑफ कार्बन, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहता हूं. तो टेट्राहेलाइड्स ऑफ कार्बन, right, do not form complexes, do not form complexes. सेम वही रीजन है, सेम रीजन है यहां पे. क्या है, कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसके पास है ही नहीं. समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो उसकी वजह से विच कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4. लेकिन उसके अलावा जो भी अदर एलिमेंट्स के टेट्राहेलाइड्स है उसके पास तो क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है,
सो देयरफॉर दे कैन इंक्रीज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे मेरे पास जर्मेनियम है या टीन है या लेड है, राइट। दे बिहेव एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। बट टेट्रा हेलाइड ऑफ कार्बन डज नॉट, क्योंकि कार्बन के पास रिसीव करने के लिए ही कुछ है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरे पास SiF4 है और मैंने उसका HF के साथ रिएक्शंस करवाया, तो वो H2 SiF6 में चला गया है। उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड में चला गया है। उसी तरह से हम SnCl4 को भी देखेंगे। उसका मैंने क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाया, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिए वो 6 पे चला गया है। हेक्साक्लोरोस्टेनेट आयन में चला गया है। हेक्साक्लोरोस्टेनेट आयन तक चला गया है। तो ये मैंने जो बात की थी वो आपके साथ मैंने MX4 यानी टेट्रा हेलाइड के लिए बात की थी। अभी थोड़ा हम एक बात और भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो बी टाइप, हमारी जो बी स्टाइल है उसको हम बोलेंगे MX2। तो MX2 स्टाइल के लिए भी हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। डाइहेलाइड्स में ये हम बोल सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड सिलिकॉन, except carbon and silicon, right, form डाइहेलाइड्स। यानी जर्मेनियम, टीन और लेड डाइहेलाइड्स MX2 स्टाइल के वो बनाएंगे। MX2 स्टाइल वाले डाइहेलाइड्स वो वहां पे बना सकते हैं। और यहाँ पे जो डाइहेलाइड की भी जो स्टेबिलिटी है, राइट, वो भी आप देखेंगे कि SnX2 और PbX2 में इस तरह से मुझे दिखाई दे रही है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ these halides, right, which is increased steadily as we move down the group from germanium to lead. और considering the thermal and chemical stability से हम देखेंगे तो GeX2 is more stable than GeX4 is more stable than GeX2 और PbX2 more stable than, लेकिन यहां पे क्या होगा? PbX2 is more stable than। तो ये थोड़ी बात हमने यहाँ पे हेलाइड के बारे में यहाँ पे आपको समझाई हुई है। तो आपने समझा होगा कि हेलाइड्स में किस तरह से हम यहाँ पे अपना पॉइंट्स है वो दिखा रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं वो है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। जैसा हमने S ब्लॉक में देखा था, P ब्लॉक में भी हमने देख रहे हैं अभी। तो उसी तरह से कार्बन है इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 14। So same way they shows an anomalous behavior differs from the rest of the members of its family। तो उसका जो reasons होता है, तो वो reasons क्या है पहले हम देख लेते हैं। एक्सेप्शनली सभी में ये जो पॉइंट होगा इसमें क्या होगा, उसकी स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज होने की वजह से। वो तो ग्रुप पीरियड 2 के सभी एलिमेंट्स में ऐसा ही होगा। दूसरा, उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने ग्रुप में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ही होती है। और इसकी हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है। हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और एब्सेंस ऑफ, ये तो सेम पॉइंट यहाँ पे हमने बार बार एक ही बार हर बार हम दोहरा रहे हैं यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। समझ में आ गया? ये जो 4 पॉइंट है हमें मालूम है सभी जगह पे एनोमलस बिहेवियर के लिए वही रिफरेंस। अभी हम देखेंगे कि उसका जो मेन डिफरेंस का रीजन क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड, is very hard as compared to the other members of the
ग्रुप 14। दूसरा उसका हाई या हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तीसरा हम यहाँ पे देख सकेंगे कार्बन जिसके पास होता है, कार्बन के पास क्या होता है, तो कि कार्बन के पास ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स है, यानी एक 2s है और 3 2p है। Therefore, at the maximum, it can accommodate 4 pairs of electron around it. So the maximum covalency जो मुझे यहाँ पे मिलेगी, उसकी maximum covalency मुझे यहाँ पे जो मिल रही है वो क्या होगी of carbon is what 4। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उसके पास क्या होती है, तो कि वो 6 तक चली जाती है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals, so they can expand their covalency up to 6। तो ये हमें मालूम है, ये सभी पॉइंट्स हमें मालूम ही है, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हाँ, ये जो वाला पॉइंट है वो आपको अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा कि ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से और उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दामोदार या हम बोलते हैं ऐसे कि उसका जो मेन बेस है वो यहीं पे खड़ा हुआ है कि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म ppi मल्टीपल बॉन्ड्स। तो वो ppi मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहे आइदर विद, जैसे C डबल बॉन्ड C है या C ट्रिपल बॉन्ड C है, राइट। दूसरे के साथ जैसे ऑक्सीजन के साथ भी C डबल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, सल्फर के साथ भी वो C डबल बॉन्ड ऐसे सब मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं। The remaining elements, however, do not form such a type of ppi bond because their atomic orbitals are too large and diffuse to have a effective overlapping. So this reluctance of silicon to form ppi multiple bond to itself is shown by the following facts। देखिए फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि due to small size and high electronegativity, carbon has a strong tendency to form ppi multiple bonds either with itself, जैसे यहाँ पे अपने इस तरह से, और with atoms such as oxygen, nitrogen and sulfur, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। बट जो दूसरे उसी ग्रुप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड होते हैं, तो they do not form a ppi bonds because their atomic orbitals are too large and are diffused to have a effective overlapping। तो वो बड़ा होने की वजह से, दूर रहने की वजह से बढ़िया वाला जो इंटरेक्शंस होना चाहिए, उसका ओवरलैपिंग होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? तो ये जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन है विच इज एग्जिस्ट ओनली इन द डायमंड स्ट्रक्चर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, इज कंपेरेबल टू द ग्रेफाइट, राइट। और एक ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको दिखाया वो उसका हम कैटेनेशन के साथ, यही जो प्रोसेस होती है उसको ही हम क्या बोलेंगे, कैटेनेशन बोलते हैं। सो उसके पास रिमार्केबल, इसको हम रिमार्केबल प्रॉपर्टीज बोलेंगे कैटेनेशन को, खुद के साथ जुड़ने की जो प्रोसेस होती है, जैसे हम उसको बोलते हैं एबिलिटी ऑफ लाइक एटम्स टू लिंक विथ another through covalent bond। आपको समझ में आएगा जो उसकी एबिलिटी है, राइट, ऑफ लाइक एटम्स टू लिंक विथ वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज सेम वे, मैंने अभी आपको बोला था कि दिस इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम एंड यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। So this properties of catenations mainly depends upon the strength of element bond since the bond energy of, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कार्बन कार्बन के बॉन्ड की जो यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है
वो एनर्जीज मुझे कितनी मिल रही है, 348 किलो जूल पर मोल मुझे मिल रही है, राइट। कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच वो बना रहे हैं, तो कार्बन कार्बन चेन्स और रिंग ऑफ डिफरेंट साइज शेप्स भी वो वहां पे जैसे बन रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे नीचे चले जाएंगे, जैसे मैं सिलिकॉन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो 297 पे चला गया है। मैं आपको डेटा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको महसूस हो सके, आपको समझ में आ गया, ये 260 पे चला गया है। टीन और टीन के बीच में ये आप देख रहे हैं तो वो 240 किलो जूल पर है, और लेड के बीच में भी आप देखेंगे तो वो 81 किलो जूल पर मोल चले गए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एलिमेंट बॉन्ड एनर्जीज डिक्रीज रैपिडली, राइट। देयरफॉर द टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी ना। तो कार्बन की बहुत ज्यादा है सिलिकॉन से जर्मेनियम और टीन के बीच में ऐसा है, और फिर लेड में इस तरह से पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक और पॉइंट है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन पी पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन की वजह से कार्बन क्या होगा, सो कार्बन सोर्स एलोट्रोपिक फॉर्म, उसको क्या मिलेगा, एलोट्रोपिक फॉर्म्स में वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ना कैटेनेशन की। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज और पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, जैसे एलोट्रोपिस ऑफ कार्बन में हम देखेंगे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन्स है, तो ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे एरोमेरस बिहेवियर ऑफ कार्बन के बारे में। थैंक यू।